Okay, Ranvijay, so let's start your thermodynamic snap. And as you mentioned, you are preparing for Oil India examination. Yes. Oil India interview. So you cracked the written examination and now you are preparing for your interview. Fine. So thermodynamics, I'm starting with very simple question. What is energy? Ranvijay? Energy is basically to capacity to do work. Mhm. There are different kinds of energy, Mhm. potential energy, kinetic energy. Energy are in the form of heat, work. अच्छा, मेरे को बताओ, what is the difference between internal energy and enthalpy? Internal energy is basically the energy at the molecular level, which the molecule possesses, molecular level kinetic energy, uh, uh, potential energy, and enthalpy. Enthalpy is basically the sum of the internal energy and the flow work. What is that flow work? Flow work, the work associated with the open system. Work associated with open system means that is a kind of boundary work. That is a boundary work. That is the boundary work. Yes, sir. Means it's a kind of, suppose turbine is a open system, so that work is a work developed in the turbine. Sir, turbine is the open system, sir. There is a flow work, sir. Mhm. Open system, that is So how you are going to write the steady flow energy equation? steady flow energy equation, sir. That is based on the conservation of energy. Energy in steady flow, energy in equals to energy out. That is the property is independent of temperature. Can you write that equation, Ranvijay? Yes, sir. Yes, sir. Fine, equation is fine, but here you are taking some other work also. What is that? That W is representing. Sir, ये सर फ्लो वर्क है सर जो मिल रहा है. So W is a flow work. Yes, sir. But already there is some work in the enthalpy term. सर सपोज जैसे सर टरबाइन है, टरबाइन में सर वर्किंग फ्लूइड एंटर हो रही है तो कुछ इंथैल्पी पे एंटर होगी बट हैविंग सम वेलोसिटी. फिर वो किसी पोटेंशियल पे होगी तो किसी डेटम लेवल से किसी हाइट पे होगी, फिर वो उससे निकल रही है बाहर, फिर उसमें कुछ हीट भी सप्लाई हो रही है, फिर वो बाहर निकल रही है, तो बाहर निकल रही है तो वो एंथैल्पी ड्रॉप होकर निकल रही है, टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, एंथैल्पी ड्रॉप होकर निकल रही है, वेलोसिटी भी कम हो रही है और लो डेटम पे निकल रही है, उसके साथ साथ वो वर्क भी प्रोड्यूस कर रही है. You know, there is a process known as throttling. Yes. That we use in our refrigerators also. तो जो हमारे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स हैं उनमें व्हाट काइंड ऑफ थ्रोटलिंग डिवाइस वी यूज? किस तरह का थ्रोटलिंग डिवाइस हम यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर्स में? थ्रोटलिंग डिवाइस से कैपिलरी ट्यूब वगैरह यूज करते हैं. हाँ ठीक है, तो बताओ मेरे को, थ्रोटलिंग जो करते हैं वो गैस का थ्रोटलिंग करते हैं वीसीआरएस में या लिक्विड का थ्रोटलिंग करते हैं? लिक्विड सर, क्योंकि ठीक है, तो टेम्परेचर कैसे डिक्रीज करता है? व्हेन वी कैरी आउट थ्रोटलिंग, हाउ द टेम्परेचर डिक्रीजेस? temperature in throttling process, that is the enthalpy remains constant. Enthalpy remains constant and the pressure get reduced. Yes, good. प्रेशर रिड्यूस होने से at constant volume, constant specific volume, सर टेम्परेचर ड्रॉप होगा. तो
You only mentioned कि sir we are carrying out floating out liquids. So why you are using that ideal gas equation? Actually, I had no clear idea about. ठीक है, ठीक है. तो मेरे को बताओ what is second law of thermodynamics? Second law of thermodynamics basically based on two statements. That is the Kelvin-Planck statement, in which no cycle can performs work while exchanging heat from a single reservoir, and the process statement that from transfer of energy from a low temperature reservoir to a high temperature reservoir, there should be a requirement of an external source of energy. It is basically the qualitative law. ठीक है. तो एंट्रोपी क्या होता है रणविजय? व्हाट इज एंट्रोपी? Entropy is basically the degree of randomness. Uh, it is basically developed due to the heat exchange in the system. That is entropy is basically the function of temperature. Function of temperature. At constant temperature, entropy is not going to change. At constant temperature, that is at an isothermal system. Isothermal system, internal energy is del U equals to 0. Then there is You are saying कि entropy is a function of temperature. Then what I am asking you, if temperature is not changing, तो क्या entropy change करेगा नहीं करेगा? एंट्रोपी चेंज करेगा सर, क्योंकि डेल्टा एस m r ln T2 upon T1 plus m. कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये बढ़ेगा घटेगा, किस पे डिपेंड करेगा? सर कांस्टेंट टेम्परेचर पे सर ये प्रेशर या फिर वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा. अगर प्रेशर वॉल्यूम में वेरिएशन है तो फिर एंट्रोपी चेंजेस होगी. अच्छा मेरे को बताओ, कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर आपने हीट एडिशन किया, कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर आपने हीट एडिशन किया तो प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट एडिशन किए फिर इट डिपेंड्स कि सिस्टम कैसा है. कांस्टेंट टेम्परेचर पे सर अगर हीट एडिशन किए तो फ्रॉम द फर्स्ट क्लोज सिस्टम मान लो, सपोज क्लोज सिस्टम, काइंड ऑफ पिस्टन सेंटर अरेंजमेंट, क्लोज सिस्टम, तो सर प्रेशर बढ़ेगा सर, हीट ऐड होगा. हीट एडिशन होगा तो प्रेशर बढ़ेगा. यस सर. कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन प्रेशर बढ़ेगा. आर यू श्योर? अच्छा मेरे को शो कर सकते हो दैट प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम एंड टीएस डायग्राम? कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर नहीं, कांस्टेंट टेम्परेचर. कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन प्रोसेस यू नीड टू शो ऑन पीवी डायग्राम एंड टीएस डायग्राम. पीवी एंड टीएस डायग्राम सर. हाँ दिखाओ, जस्ट शो मी द डायग्राम. दोनों उस पे दिखाना है आपको, पीवी पे भी और टीएस पे भी. अच्छा ठीक है, अब आपने ऐसा किया कि प्रेशर बढ़ रहा है. अच्छा मेरे को एक बात बताओ आप, ये अच्छा टीएस डायग्राम पे भी प्रेशर कर्व दिखाओ. टीएस डायग्राम पे 0.1 0.2 इनिशियल स्टेट को टेक इट एज 0.1. टीएस डायग्राम पे जस्ट शो द टू प्रेशर कर्व्स. एक प्रेशर लाइन दिखाओ जो 0.1 पे है, एक प्रेशर लाइन दिखाओ 2 पे है. टीएस डायग्राम में क्या दिखाना है सर? टू कांस्टेंट प्रेशर लाइंस. 0.1 पे प्रेशर लाइन दिखाओ. यस यस यस. स्टार्टिंग पॉइंट पे दिखाओ प्रेशर लाइन, कांस्टेंट प्रेशर लाइन, और एंड पॉइंट जो है 0.2 उस पे कांस्टेंट प्रेशर लाइन यू नीड टू शो.
नहीं, उसी जो डायग्राम आपने ऊपर बनाया ना, टीएस डायग्राम 1 to 2, उसी पे दिखा हुआ आपने डायग्राम दिखा ना, टीएस डायग्राम 1 to 2। यस यस सर। हाँ, तो वहीं पे आपको 2 कांस्टेंट प्रेशर लाइंस यूनिट टू शो। यहाँ पे सर 2 कांस्टेंट प्रेशर लाइन। ये तो एक प्रेशर लाइन होगी ना, दूसरी भी दिखाओ, पॉइंट 2 पे भी दिखाओ। ठीक है, सही बनाया आपने। पॉइंट 1 पे आपने कांस्टेंट प्रेशर लाइन दिखा दी, सेम जस्ट ड्रॉ सिमिलर काइंड ऑफ लाइन ऑन पॉइंट 2 आल्सो। पॉइंट 1 पे जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन दिखा रहे हो उस पे P1 लिखो, पॉइंट 2 पे जो लाइन दिखा रहे हो जस्ट मार्क P2 ऑन दैट लाइन एंड फाइन। रणविजय, यस सर। हाँ दिखाओ। And now tell me which one is more, P1 is more or P2 is more? हाँ, गुड गुड गुड, ठीक है। अब मेरे को बताओ कौन सा प्रेशर ज्यादा है, P1 ज्यादा है P2 ज्यादा है? सोच के बताओ। तीन। हम्म, बताओ। अगर कोई दिक्कत है तो वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो। रणविजय, हाँ, P2 ज्यादा होगा। P2 ज्यादा होगा, चलो ठीक है। रीजन, एनी रीजन व्हाई यू आर गोइंग फॉर P2? सर हीट एडिशन है, एंट्रोपी बढ़ रही है। चलो एक मैं आपको एक करेक्ट एक करता हूँ, एक सेकंड, एक सेकंड सर, मैं आपको एक हिंट देता हूँ। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ ठीक है, चलो। हाँ, सर सर, डेल्टा एस इस केस में सर MR ln P1/P2 होगा। तो डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो ln P1/P2 पॉजिटिव होगा, तो P1 ज्यादा होगा P2। P1 ज्यादा होगा, यस। P1 ज्यादा होगा P2 ज्यादा होगा, P1 ज्यादा होगा ना। कि सर P1 ज्यादा होगा P2 से। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर डिक्रीज करता है, हीट एडिशन करते हैं तो। इससे तो यही आ रहा है। तो फिर तो हमें पीवी पे भी करेक्ट करना पड़ेगा इसको, पीवी पे। पीवी पे, यस सर। कैसे जाना चाहिए प्रोसेस पर? पीवी पे सर फिर वो उल्टा हो जाएगा अगर सर रिजिड नहीं है। वो होना भी चाहिए। यस यस। क्यों होना चाहिए? यू आर एडिंग हीट ना। यस। तो हीट एडिशन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? पॉजिटिव सर। हीट एडिशन हम पॉजिटिव लेते हैं नेगेटिव लेते हैं? पॉजिटिव सर, पॉजिटिव। पॉजिटिव। आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन एनर्जी जीरो, यस तो चेंज इन हीट ट्रांसफर इक्वल टू वर्क ट्रांसफर। यस Net heat transfer equal to work transfer. Whatever heat यस you are adding in a process, that is equal to work transfer in यस an isothermal process. यस तो हीट ट्रांसफर पॉजिटिव है तो वर्क भी तो पॉजिटिव मिलेगा ना। यस वर्क नेगेटिव कर रहे हो ना, अगर आप वॉल्यूम कंप्रेस कर रहे हो, यस यस इफ यू आर डिक्रीजिंग द वॉल्यूम इट मींस यू आर डूइंग वर्क। यस गलत नहीं हो जाएगा? यस यस। आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हीट एडिशन करते हैं तो एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा यस सर। और प्रेशर डिक्रीज करेगा। यस ठीक है, तो अभी वो पॉइंट समझ में आ रहा है जो पहला पॉइंट था, यस सर। पीवी डायग्राम पे आइसोथर्मल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। चलिए खैर, मेरे को बताओ अवेलेबल एनर्जी क्या होता है रणविजय? व्हाट इज अवेलेबल एनर्जी? Sir, it is the maximum possible energy which can be extracted from the system up to its dead point. Maximum energy that can be Extracted from a system. extracted up to its dead point. Yes, sir. अच्छा, ये लॉस इन अवेलेबल एनर्जी क्या होता है? Low sink. लॉस इन अवेलेबल एनर्जी, Sorry, sir. एक बार फिर से.
अवेलेबल एनर्जी का लॉस क्यों होता है? व्हाई वी लूज Loss, अवेलेबल loss. एनर्जी? यस यस। Yes, yes. Due to irreversibility, sir. तो ये बताओ इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है? Sir, irreversibility, sir. Change in entropy multiplied with the आप फार्मूला मत बताओ, मेरे को बताओ, वैसे बताओ, जस्ट फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज Yes. इरिवर्सिबिलिटी? sir. Any process we can obtain. We can have some losses in this process because of some frictional losses or other due to irreversibility there is a losses external or चलो मेरे को internal. बताओ इरिवर्सिबिलिटी, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन टू यू रणविजय, Yes, yes. हाउ वी कैन डिक्रीज द इरिवर्सिबिलिटी? Sir, by reducing the friction, गुड। uh, by increasing the by reducing the datum temperature, that is the sink temperature, by reducing the sink temperature, by increasing the mean temperature of heat addition in any cycle. This may ठीक है, be the yes, फाइन। ओके रणविजय, आई थिंक नाउ आई कैन प्रोवाइड यू द फीडबैक। yes, yes. देखो, एक तो आज मेरे को थोड़ा, आपका फर्स्ट टाइम आई थिंक यू जॉइन फॉर द स्नैप, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ठीक ठाक है, मतलब एवरेज ही मैं कहूंगा उसको, इट्स नॉट दैट मच गुड। तो एक तो आपको उस पर काम करना है। देखो होता क्या, आपको क्या, आप, मैं उसको एवरेज क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज यू आर लुकिंग कंफर्टेबल, आपकी जो वॉइस है वो ठीक आ रही है, बट यू आर नॉट मेकिंग द आई कॉन्टेक्ट, आप हेजिटेट कर रहे हो, कॉन्फिडेंटली आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यू आर नॉट लुकिंग कॉन्फिडेंट। आर यू गेटिंग रणविजय? Yes, एवरेज क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज आप कैसे भी हो, आप बैठे सिस्टमेटिक हो, आप ऐसा नर्वस नहीं लग रहे हो, बट नर्वस ना होना भी कॉन्फिडेंट नहीं है। कॉन्फिडेंट मतलब you need to explain, you need to convince the interviewer in a very clear and strong manner, कि आप convince कर पाओ कि yes sir, this is the way, this is the right answer for that। तो वो नहीं लगा मेरे को, strongly आप explain नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को रख नहीं पा रहे हो। I started with energy, internal energy, enthalpy क्या होता है? एनर्जी तो चलो आपने ठीक बताया, अब एंथैल्पी क्या होता है? इट्स द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क। फ्लो वर्क क्या होता है? इसको फ्लो एनर्जी भी बोलते हैं। this is not like boundary work, ये टरबाइन वर्क नहीं है। फ्लो एनर्जी या फ्लो वर्क क्या बोलते हैं? इट्स एनर्जी और वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द फ्लूइड इनटू द कंट्रोल वॉल्यूम, or it is the energy or work required to move fluid out of the control volume, that is known as flow work। तो open system में the fluid move कर रहा है, तो other than internal energy it is carrying but the flow energy also, because then only it will be able to flow। so sum of internal energy plus flow work, that is enthalpy, and it is nothing but the energy contained by the fluid in open system। are you getting? other than the bulk energies, like bulk energy is what? Kinetic energy and potential energy। ठीक है, चलिए, तो इसको थोड़ा समझना है, अच्छे से आंसर करना है। सेकेंड लो थर्मोडायनेमिक्स, आपसे पूछा मैंने आपसे पूछा एंट्रोपी क्या होता है, बहुत कंफर्टेबली नहीं बताया आपने, अच्छे से नहीं बताया एंट्रोपी क्या होता है, मेरे ख्याल से आपने प्रिपेयर नहीं किया इस पार्ट को भी। एंट्रोपी के बारे में तो ज्यादा नहीं, बट इतना ही। अब एंट्रोपी क्या कहोगे सर इन थर्मोडायनेमिक्स? एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ द irreversibility, it is a measure of the unavailable energy actually। entropy in thermodynamics is a measure of unavailability। we know sir, entire heat we cannot convert into work, heat is having huge amount of entropy association with it। so how much is the unavailability in heat, that we can measure through the concept of entropy। and in general sir, we can say entropy is nothing but it's a measure of the randomness or disorder of the molecules। Yes. and sir, through thermodynamics knowledge we know more is the randomness, more is the disorder, more is the entropy, and more is the dose in available energy, okay, less will be the efficiency of that energy transformation, energy conversion process। ठीक है, तो इतना बता दोगे तो वो समझ में आ जाएगा कि you know something about entropy। Are you getting रणवीर जी? Yes। इस तरह से बताना है आपको, एक बेसिक जो मैंने बताया पहले, फिर एंट्रोपी का बेसिक डेफिनेशन, उसका सिग्निफिकेंस, आपको उसको एंड जरूर करना है किसी ना किसी अच्छे पॉइंट पे। Yes। आप फंस गए, आप क्या कर रहे थे जब आपको वर्ड्स नहीं मिल रहे थे,
Yes, yes. मेरे ख्याल से बीच बीच में तो आप कुछ रेंडमली वर्ड्स पिक कर रहे थे कि एंट्रोपी सर टेम्परेचर पे, ऐसे ऐसे वर्ड्स नहीं दे रहे क्योंकि आप खुद ही फंस रहे थे। मैं आपको एक भी क्वेश्चन मैंने आपसे अलग से नहीं पूछा, आई आस्क्ड यू ऑल द क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हाटएवर यू आंसर्ड, और आपने मेरे को ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स दिए जहां पे आप फंस गए। आपने बोला कि एंट्रोपी इज डायरेक्टली इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मैंने कहा अच्छा ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ऑब्वियसली करता है, हाई टेम्परेचर पे एंट्रोपी ज्यादा होता है, लो टेम्परेचर पे कम होता है। बट उसी में अगर मैं आपको फंसाता तो मैं आपसे पूछता कि एंट्रोपी ds इक्वल टू dq by t, so what do you feel, it is looking like directly proportional to temperature or inversely proportional to temperature? ds इक्वल टू dq by t, dq by t. हाँ, तो एंट्रोपी क्या लग रहा है आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? इक्वेशन से तो इनवर्सली लग रहा है, बट होता कैसे? होता है डायरेक्टली, आपने बताया। हाँ, तो अब कन्विंस कर पाओगे इसको, कन्विंस करोगे आप इसको? मैंने वो उस टाइम पूछा नहीं आपसे, आर यू वेटिंग? तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स हाईलाइट नहीं कर रहे हैं कि जिनमें आप फंस जाओ, पर थोड़ा सोचना है एंड यू नीड टू हाईलाइट ऑल दोस पॉइंट्स जहां पे आप आंसर कर पाओ। तो टेम्परेचर के साथ एंट्रोपी बढ़ता चेंज करता है, टेम्परेचर का फंक्शन है, एंट्रोपी टेम्परेचर के साथ चेंज करता है, बट इट डजंट मीन कि इट इज ओनली ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ऐसा नहीं है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे भी एंट्रोपी बढ़ सकता है, घट सकता है। इफ यू आर एडिंग हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एंट्रोपी इज गोइंग टू इंक्रीज, इफ यू आर रिजेक्टिंग इट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इट इज गोइंग टू डिक्रीज। सो अदर देन टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ सम अदर थिंग्स आल्सो। तो फिर मैंने आपसे पूछा कि एक प्रोसेस में आइसोथर्मल में हीट एडिशन कर रहे हो तो कैसे करें? देखो आपको बेसिक से शुरू होना था, dq इक्वल टू du प्लस dw। तो आइसोथर्मल है तो du 0 हो जाएगा, यू आर एडिंग इट तो dq विल बी पॉजिटिव, सो वर्क विल बी पॉजिटिव। आइसोथर्मल में हमें पॉजिटिव वर्क मिलता है जब हम हीट एडिशन करते हैं, एक्सपेंशन होता है। कार्नोट साइकिल में तो एक्सपेंशन वही हो रहा है ना, आइसेंट्रोपिक में भी वर्क मिलता है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन भी होता है, और जब रिजेक्शन करेंगे तो कंप्रेशन होगा, ठीक है। तो वहां से आपको अंदाजा हो जाना था कि मेरे को प्रोसेस कहां से कहां शो करना है। आइसोथर्मल प्रोसेस तो आपको पता है पीवी पे कैसे शो करते हैं, यूजिंग अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बट उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए वो भी तो पता होना चाहिए ना रणजीत। तो वो मिस्टेक नहीं करनी उस तरह की। अवेलेबल एनर्जी को क्या बताओगे? इट इज अ मैक्सिमम वर्क सर, मैक्सिमम वर्क दैट वी कैन ऑब्टेन बाय ब्रिंगिंग द सिस्टम टू द डेड स्टेट थ्रू ए रिवर्सिबल प्रोसेस। So in a reversible process, whatever maximum work we can obtain by bringing the system to the dead state, that is known as available energy. तो इसमें दो पॉइंट आ रहे हैं, एक तो रिवर्सिबल प्रोसेस, दूसरा डेड स्टेट। इरिवर्सिबिलिटी के बहुत सारे रीजन होते हैं, एक इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी होता है, एक होता है आपका एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी। तो इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी तो फ्रिक्शन की वजह से होता है, ओके, और एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी आपका होगा किसकी वजह से? नॉन इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो नॉन इक्विलिब्रियम सिस्टम एंड सराउंडिंग causes external irreversibility, friction causes internal irreversibility, ठीक है। तो कैसे कम कर सकते हैं सर? एनी प्रोसेस इफ यू आर एडिंग हीट, सो इफ यू आर कीपिंग द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन हायर, जितना मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन ज्यादा होगा एंट्रोपी चेंज कम होगा, ds इक्वल टू dq by t। इफ यू आर एडिंग हीट एट हाई टेम्परेचर, एंट्रोपी चेंज कम होगा, इरिवर्सिबिलिटी कम हो जाएगी, अवेलेबल एनर्जी कम हो जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जैसा सुपर हीटिंग में हम करते हैं, रीजनरेशन में हम करते हैं ना, पावर प्लांट में सुपर हीटिंग करते हैं, रीजनरेशन करते हैं, जस्ट टू इंक्रीज द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। मीन टेम्परेचर हीट एडिशन करके कर क्या रहे हैं? जो फ्लू गैस है और जो आपका वाटर है, उनके बीच का टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं ना। वी आर ट्राइंग टू अप्रोच ए रिवर्सिबल प्रोसेस। तो आपको एक लाइन अगर ये भी बोल देते ना तो मैं खुश होता। आपको बोल रहा था कि सर एक्चुअली we know in thermodynamics there is a reversible process, and that reversible process there is no irreversibility. So if you want to remove the irreversibility, we can try to approach a reversible process, although it is not possible to get a reversible process, but we can try to approach a reversible process. तो चलो फिर इंटरव्यू आपसे पूछ सकता था, अच्छा रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे अप्रोच कर सकते हैं? आर यू गेटिंग? बट आपको चेन में आप क्वेश्चन उसमें गेट मिल सकते थे आपको, कि फिर आप बता सकते थे कि नॉन इक्विलिब्रियम को कम कर सकते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस को कम कर सकते हैं, ताकि फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस ना हो। बहुत कम टेम्परेचर डिफरेंस से अगर हम हीट एडिशन कर रहे हैं तो उसका अवेलेबल एनर्जी लॉस नहीं होगा। आपके पास क्यू अमाउंट ऑफ हीट है, मान लीजिए 1000 केल्विन पे आपने हीट एडिशन किया, और वो क्यू अमाउंट ऑफ हीट आपके पास है अभी 950 केल्विन पे, तो कोई बहुत ज्यादा एक्सर्जी लॉस नहीं हुआ। बट सपोज आपके पास हीट अवेलेबल है 1000 पे, आपने उसको ऐड किया 400 पे, तो जब 1000 पे है तो उसका अवेलेबल एनर्जी कितना ह्यूज है, जब 400 पे आ गया तो उसका तो एनर्जी का तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो रिवर्सिबिलिटी विल बी मोर इफ यू आर एडिंग हीट विद वेरी हाई टेम्परेचर डिफरेंस। ये सब कुछ नहीं भी पता, इतना बता दो कि नॉन इक्विलिब्रियम बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, द ग्रेडियंट्स बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग कॉजेस एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटी। ठीक है रणवीर जी?
तो अभी Yes. थोड़ा पढ़ो इसको। आज तो ठीक ठीक ही लगा है मेरे को। आई एम गोइंग टू गिव यू एवरेज मार्क्स ओनली। अभी दिस टाइम आई कैन नॉट से यू आर वेरी मच रेडी फॉर योर इंटरव्यू, बट अभी टाइम है आपके पास एज सच, बिकॉज डेट्स नहीं आई हैं। तो प्रिपेयर करते रहो, गो फॉर मोर एंड मोर स्नैप्स, प्रिपेयर करो एंड जॉइन मी अगेन। Okay. Thank ओके you. Thank you. ओके, गुड लक।